So hello everyone, this video is basically the continuation of NCERT class 9 mathematics, the chapter lines and angles. So let's get started. Now first, one thing we need to know is here it is pair of angles. Pair of angles, basically it refers to a set of two angles. That means you can consider a straight line. On a straight line, what is the angle formed? It is a straight angle. So this angle is always equal to 180 degrees. So if at this point we draw another line, then we get two angles. Then these two angles are called linear pair. And the important thing to note here is that the sum of these two angles is always equal to 180 degree. That means if we name this as AOB and COB, then we can write angle AOB plus angle COB is always equal to 180 degrees. And this property of a straight line is referred in NCERT as axiom 6.1. You can read the statement and clarify your concepts further. So basically this forms a linear pair. Second thing which we need to note is that vertically opposite angles. Now as the name states, vertically opposite, it means what? The angles are vertically opposite to each other in this manner. This angle and this angle are said to be, if we name it as 1, 2, 3 and 4, then 1 and 2 are said to be vertically opposite angles and 3 and 4 are said to be vertically opposite angles. Okay? Now the property regarding vertical angle is that if we consider a pair of vertically opposite angles, here we can take angle 1 and angle 2, then the pair of vertically opposite angles are always equal to each other. Means angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. This property is referred as theorem 6.1 in NCERT. You can read it for further ados. Next is we come to the topic parallel lines. What are parallel lines? Parallel lines are such lines which never intersect each other when extended parallelly infinitely. Means if we extend both these lines in the same direction, then they will never meet each other. कभी नहीं मिलेंगे ये दोनों. तो इनको हम कहेंगे parallel lines. और parallel lines के लिए एक बात ध्यान रखने वाली है कि पैरेलल लाइंस को अगर हम किसी दूसरे लाइन से कट करें तो इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल, ठीक है. अब पैरेलल लाइंस में आप देखेंगे, जब मैंने बोला था पहले कि जब कभी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल्स फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हुए हैं. तो इन सब एंगल्स का कुछ डेफिनेट नेम्स है और कुछ प्रॉपर्टीज है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो लेट अस कंसिडर टू सेट ऑफ लाइंस and this is the transversal. We name these angles as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब आप ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, सो हियर angle 1 and angle 2, these are linear pair as discussed earlier. अब नया चीज है यहाँ पे, पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या? यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 देख रहे हैं आप, पोजीशन को नोट कीजिए.
ये दोनों एक ही पोजीशन में लग रहे हैं देखने में, मतलब एक दूसरे के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 6. दूसरा एंगल 1 एंड एंगल 5, these are also corresponding angles. Again angle 4 and angle 8, these two are also corresponding angles. And angle 3 and angle 7, these are also corresponding angles. So corresponding angles ये हो गए. नेक्स्ट आता है alternate angles. alternate angles मतलब यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल का ऑल्टरनेट साइड पे हो तो उसको कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. और अगर ये लाइन एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के अंदर फॉर्म हो तो उन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और अगर ये पैरेलल लाइंस के बाहर फॉर्म हो तो इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 8, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 7, दिस टू आर सेड टू बी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड हो तो उन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं. ऑन द सेम साइड अगर हुआ तो आप देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसका सेम साइड मतलब एक ही साइड पे कौन सा एंगल्स है? एंगल 3 और एंगल 5, सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6, देन दीज एंगल्स आर सेड टू बी इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side. So angle 3 and angle 5 and angle 4 and angle 6, this forms interior angles on same side. Done. अब ये हो गए एंगल्स के डेफिनिट नेम्स. अब हम उन एंगल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एनसीईआरटी में पहला एक्सियोम है 6.3. एक्सियोम 6.3 इज अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये फिगर मैं एक बार फिर से बना देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये हो गए पैरेलल लाइंस, ये हो गया ट्रांसवर्सल. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते थे? दिखने में एक जैसे एंगल्स, देन दिस एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंड दिस एंगल्स आर आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एक्सियोम 6.3 बेसिकली क्या बोलता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड एट बाय टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल. मतलब इसको 1, 2 और 3, 4 अगर नाम दे दे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. यह है एक्सियोम 6.3. और एक्सियोम 6.4 ठीक इसका रिवर्स है. मतलब अगर दो लाइंस दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं बोला है कि ये लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइंस में ट्रांसवर्सल से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे. मतलब ठीक इसका उल्टा. यहाँ पे क्या होता था? अगर ये लाइंस पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? अगर एंगल्स इक्वल है तो दिस लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल. ओके. नेक्स्ट आता है थ्योरम 6.2. इट इज अबाउट ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? यहाँ पे इसको अगर 5 और इसको 6 बोलें तो एंगल 2 and 5 आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड एंगल 4 and 6 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर फॉर्म हो रहे हैं. सो
यहाँ पे ये बोलते हैं थ्योरम 6.2 स्टेट्स दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल 2 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. Similarly, alternate exterior angles are also equal. कोई भी alternate angle अगर आपको दिख जाए, आपको आइडेंटिफाई करना मेन बात है. यहाँ पे डायग्राम को देख के विजुअलाइज करना कि हाँ यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहा है. इसको अगर आप सीख जाएं तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं. ठीक है. तो और दूसरा इसका ही थ्योरम 6.3 ठीक इसका ही उल्टा है. मतलब यहाँ पे क्या होता था, पैरेलल लाइंस होने से ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते थे, और यहाँ पे थ्योरम 6.3 बोलता है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों तो दो लाइंस पैरेलल होंगे. ठीक इसका ही रिवर्स है. थ्योरम 6.2 का रिवर्स है 6.3. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है corresponding interior angles on same side of transversal का property which is stated in theorem 6.4 in your NCERT. ये बोलता है कि the sum of the angles formed on the same side of the transversal is supplementary. Supplementary angles क्या होते थे? If the sum of two angles is 180 degree then those angles are said to be supplementary. मतलब यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 4 एंड एंगल 5. सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 भी होंगे. तो ये थ्योरम बोलता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज सप्लीमेंट्री, मीन्स देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree. This theorem states that interior angles on सेम साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड हो जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. दिस थ्योरम 6.4. और सिमिलरली आप देख रहे हैं, ऐसे ट्रेंड देख रहे हैं आप, जैसे एक्सियोम 6.3 था, 6.3 का 6.4 जस्ट रिवर्स है. मतलब एंगल का केस दिया हुआ है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, लाइंस होने से एंगल्स इक्वल होते थे. और दूसरा में अगर एंगल्स इक्वल दिया हो तो लाइंस पैरेलल होते थे. सेम 6.2 और 6.3 भी है. सिमिलरली थ्योरम 6.5 इज द रिवर्स ऑफ 6.4. मीन्स इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, ठीक है, नॉट पैरेलल लाइंस, इफ टू लाइंस देन दोज लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल. इसका ही रिवर्स. ठीक है. और नेक्स्ट आता है थ्योरम 6.6. ये बोलता है, काफी आसान सा है. ये बोलता है इफ ए लाइन इज पैरेलल टू ए थर्ड लाइन, थर्ड लाइन मैंने क्यों बोला अभी समझ में आएगा आपको, एंड ए सेकेंड लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू द सेम लाइन, to the same third line, then the first and second line are also parallel. वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर हम डायग्राम से समझे तो काफ़ी आसान होगा. मतलब क्या बोल रहा है, सपोज L is a line and this line is parallel to a third line which is, I will represent it with N. ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, और दिया हुआ है दूसरा लाइन M है, ये भी इसके पैरेलल है. तो ये थ्योरम बोलता है कि L अगर M के पैरेलल हुआ, L अगर N के पैरेलल हुआ एंड M भी अगर N के ही पैरेलल हुआ, तो ये दोनों लाइंस L एंड M आपस में खुद के पैरेलल होंगे. ठीक है. ये था थ्योरम 6.6. सो बेसिकली हमने इस वीडियो में चैप्टर में एक पार्ट है लास्ट में ट्रायंगल्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में हमने बेसिकली एनसीईआरटी में जितने थ्योरम्स है अबाउट पैरेलल लाइंस, एंगल्स, देयर प्रॉपर्टीज, वो हमने डिस्कस कर दिए. और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम कुछ क्वेश्चंस हम पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा. आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा
क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।